تو زیادہ موزوں ہوتا. ہیلو سر. جی السلام علیکم. ہاں میرا نام محمد اقبال ہے سر. تو دفنی قواعد پر کوئی کتاب موجود ہے سر؟ کس پہ؟ دفنی قواعد پر. دکنی قواعد پر. دکنی قواعد پر کوئی کتاب موجود ہے؟ ہاں، پروفیسر سید حبیب ضیاء صاحب نے دکنی زبان کی قواعد کے عنوان سے ایک کتاب بہت پہلے لکھی تھی، جس کا پہلا ایڈیشن کراچی سے شائع ہوا تھا اور دوسرا ایڈیشن ابھی حالیہ عرصے میں یہاں حیدرآباد سے چھپا ہے. آواز پہ آگے بولا. اس کو ہٹائیے. ڈاکٹر صاحب، دیوان کی بات چلی. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ دکنی شعراء کے دواوین کی بات چلی ہے، تو ابھی آپ نے دیوان حسن شوقی کا ذکر کیا جو پاکستان سے ڈاکٹر جمیل جالبی نے مرتب کر کے شائع کیا ہے. ڈاکٹر جمیل جالبی ہی نے دیوان نصرتی بھی شائع کیا ہے. اس کے مشمولات کیا ہیں، اس کے بارے میں بھی روشن ڈالیں تو ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا. ہاں، جیسے کہ انہوں نے حسن شوقی کا دیوان مرتب کیا ہے، بالکل اسی طرح ڈاکٹر جمیل جالبی نے نصرتی کی 9 دریافت شدہ غزلوں کو یکجا و مرتب کر کے اس کا نام دیوان نصرتی دیا ہے. اگرچہ کہ یہاں بھی وہی بات ہے کہ یہ دیوان ردیف وار مرتب کیا ہوا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بھی جالبی صاحب نے تدوین کے کام پر اتنی توجہ نہیں کی جتنی کہ ہمارے بزرگوں نے، جن کا تعلق دکن سے ہے، ان لوگوں نے بہت تدوین کے سلسلے میں بہت احتیاط برتی ہے اور بہت ہی غور و خوض کے بعد دیوان یا مثنوی یہ دکن کے محققین مرتب کرتے ہیں. تو نسیم صاحب نے دیوان نصرتی کا نام لے لیا تو مجھے یاد آیا کہ ایک چرخیہ قصائد بھی اس میں ہیں. تو ایک چرخیہ قصیدے میں، نصرتی کے قصیدے میں جمیل جالبی صاحب سے جو سہو ہوا ہے، جو لغزش ہوئی ہے، وہ ایک شمالی ہند کے محقق اور ایک دکن کے محقق میں امتیاز قائم کرنے کے لیے کافی ہے. ایک جگہ انہوں نے لکھا: سیر سو جب سیر ہو شیر گوئی میں کیا، سبز بیابان پھر سیر کو نکلے ہرن. تو یہ شعر پڑھ کے بہت تعجب ہوا کہ یہ اس کا مفہوم ہی نہیں کھلتا. کیا وجہ ہے کہ ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ جب میں نے بار بار اس شعر کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ جو وہ کہنا چاہتے ہیں وہ بات شاعر بالکل نہیں کہہ رہا. شاعر کچھ اور کہہ رہا ہے اور جالبی صاحب اس کا مفہوم کچھ نکال رہے ہیں. تو یہ کاتبین حضرات شعر کو عین سے بھی لکھ سکتے ہیں، یہ سے بھی لکھ سکتے ہیں، اور گیا کو کیا بھی لکھ سکتے ہیں، گیا بھی لکھ سکتے ہیں. کاف پر ایک شوشہ بھی، ایک مرکز بھی ہو سکتا ہے، 2 مرکز بھی ہو سکتے ہیں. یہی حال یائے معروف اور یائے مجہول میں ہوتا ہے. تو اصل میں وہ اس چرخیہ قصیدے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ شعر
शेर से यहाँ मुराद टाइगर है, शीन ऐन रे शेर नहीं है। सैर सो जब सैर हो, शेर गवी में गया, सब्ज बियाबान तब सब्ज बियाबान तब सैर को निकले हिरन। शेर जब बिल्कुल फारिग हो गया, ग़िज़ा उसने खा ली और वो गवी में आराम करने के लिए चला गया, तो तब जंगल के दूसरे जानवर घास खाने के लिए आराम से फिरने लगे। तो ये शेर कातिब शेर को शीन एंड रे भी लिख सकता है, शीन ये रे भी लिख सकता है। उसी तरह गया और कया का फ़र्क है। सैर सो जब शहर हो, शेर गवी में। हम गवी को जानते हैं लेकिन शमाली हिंद वाले नहीं जानते, इसीलिए उन्होंने समझा होगा कि ये शेर गोई हो रही है। सर एक मिनट, माफ़ी चाहता जी। हूँ। इस वक्त हमारे रेफ्रिजरेटर कोर्स के शुरका में कर्नाटक और दक्कन के दूसरे इलाकों के पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि कोई एक पार्टिसिपेंट उठकर बताए कि गवी क्या होती है। ज़रा जोर से, आवाज़ नहीं पहुँची। शेर की आरामगाह बता शेर रहे शेर का ठिकाना। हैं। शेर का ठिकाना। यस, कंटिन्यू कीजिए सर। कंटिन्यू। तो गोई और गवी में जो फ़र्क है उसको मलूस नहीं रखा गया जालवी साहब की खिलाफ में। और आप कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें, जवाब कंटिन्यू। और कोई सवाल? और कोई सवाल? और कोई सवाल है? हाँ नहीं सवाल। हाँ, तो मैं आखिर में डॉक्टर साहब से अर्ज़ करूँगा कि डॉक्टर साहब ने दक्कनी गज़ल के मौजू पर नहायत ही वक़ी लेक्चर दिया। दक्कनी गज़ल के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर आपने रोशनी डाली। एक आम तासुर हमारे जहन में ये उभरता है कि दक्कनी शायरी सिर्फ महबूब के हुस्न और मामलात वसल और फ़िराक़ के सदमों से इबारत है, लेकिन क्या फ़िलवाक़े ऐसा है? क्या इन मौज़ूआत के अलावा जो दीगर मौज़ूआत हैं जैसे तसव्वुफ़ या अखलाक़, इन मौज़ूआत पर दक्कनी की किसी शायर ने कोई गज़ल लिखी है? अगर है तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब उसकी चंद अशआर पेश करें। हाँ, अखलाकियात के मौजू पर दक्कनी के कई मुतग़ज़्ज़लीन ने इज़हार ख़याल किया है। बाज़ गज़ल गो शायरों ने ख़ुसूसी तौर पर पंदो मौइज़त और अखलाक़ व तसव्वुफ़, दुनिया की नापायदारी का ज़िक्र, दुनिया बेज़ारी का ज़िक्र और किया है अपनी ग़ज़लों में। इस सिलसिले में मैं गव्वासी का ख़ुसूसी तौर पर ज़िक्र करना चाहूँगा। गव्वासी की एक गज़ल के चंद शेर पेश करता हूँ। हमन आशिक दीवानियों को छबीले किस्वतां क्या काम, हमन दुबले फ़कीरां को दुनिया और दौलतां क्या काम। साथ में थोड़ी वजाहत भी हो जाए नस्ल। हाँ, हमन से यहाँ मुराद है हम लोग। आशिक दीवानियाँ, दीवाने की जमा दीवानियाँ। हम जो आशिक पेशा हैं उनको ऐसे लिबास किस काम के जो छबीले लिबास हों, कीमती लिबास हों, उससे कोई गरज नहीं। हम आशिक पेशा हैं और हम अपने कीमती लिबास को ज़ेब तन करना पसंद नहीं करते। हम दुबले फ़कीरों को दुनिया और दौलतां क्या काम। हम जैसे दुर्वेश लोगों के लिए दुनिया और दुनिया की दौलतें किस काम की। हम न दौलत के ख्वाहिशमंद हैं और न दुनिया से दिलचस्पी रखते हैं। हमको अपने सेहत की भी कोई परवाह नहीं। हमन सर को चंदोटी बस, बलिश भर की लंगोटी बस,
सखी खाने को रोटी बस कबूलियाँ नेमता क्या काम। हमारे सर पर बांधने के लिए एक कपड़ा काफ़ी है और एक लंगोटी हमारे लिए बस है। हमको खाने के लिए एक रोटी, सूखी रोटी भी काफ़ी है। हम कबूलियाँ और नेमतों का यानी अच्छे पकवान की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब माफ़ी चाहता हूँ मुदाखलत की। ये दखले दर माकुलात नहीं, दखले दर माकुलात है, क्योंकि खबूली का जिक्र आया है। तो मैं चाहूँगा कि कोई बताए कि खबूली क्या होती है। डॉक्टर अर्शिया जबीन दक्कन की है। ये 9वीं मुहर्रम को सर ये चने की दाल की बिरयानी बनाई जाती है, उसको खबूली कहते हैं। यस। हम सर को चंदोटी, बस चंदोटी सर को बांधने का कपड़ा है। बलिश भर की लंगोटी बस सकी खाने को रोटी बस खबूलियाँ नेमता क्या काम। न डरते ख्वीश से हम जम पकड़ लेते हैं गुर्बत हम, फिर हारे हैं पर्वत हम घरा इमारता क्या काम। हम अपने अजीज़ो हारिब के साथ हमेशा नहीं रहते। जम के माना है हमेशा। पकड़ लेते हैं गुर्बत हम गुर्बत इख्तियार करने वाले हैं। फिरन हारे हैं पर्वत हम पर्वतों की सैर करने वाले हैं, फिरने वाले हैं। फिरन हारा फिरने वाला, फिरन हारे हैं पर्वत हम घरा इमारता क्या काम। घरों और इमारतों से हमें क्या काम है। दक्कनी शोरा बाज़ वक्त अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ को घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं। इसीलिए ये इमारत को इमारता तशदीद के साथ शायर ने इस्तेमाल किया है। दुनिया सो काम नहीं हमना, यहाँ आराम नहीं हमना, हमारा फाम नहीं हमना, किसी सो हुज्जता क्या काम। दुनिया से हमें कोई काम नहीं है, कोई गरज नहीं है। दुनिया सो काम नहीं हमना, दुनिया सो काम नहीं हमना, किसी सो यहाँ आराम नहीं हमना। दुनिया में हमको आराम नसीब नहीं है, इसलिए दुनिया से हमको कोई काम नहीं है। हमारा फाम कहते हैं फ़हम को। हमारा फाम नहीं हमना, हमको ये भी नहीं मालूम कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। हमारा फाम नहीं हमना। ये जो दोस्तों ये दूसरा मिसरा आपने सुना गवासी का। सर पानी पी रहे हैं इस मोहलत से फ़ायदा उठाते हुए कि हमारा फाम नहीं हमना। क्या आप में से बता सकते हैं कि इस मिसरे की तर्जुमानी इकबाल ने भी की है एक जगह। इकबाल का मशहूर मिसरा है हमारा फाम नहीं हमना। इकबाल ने अपने बारे में कहा है। कुछ इसमें तकल्लुफ नहीं जी वल्लाह नहीं है। उसका पहला मिसरा। इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, हमारा फाम नहीं हमना। ये देखिए मतालिब, मौज़ूआत और मज़ामीन किस तरह सफ़र करते हैं किसी सिन्फ की रिवायत में। इससे अंदाज़ा होता है कि गवासी ने जो बात कही थी कुतुबशाही दौर में, वो अंग्रेज़ों के दौर में कह रहे हैं इकबाल। हमारा फाम नहीं हमना गवासी ने कहा था और इकबाल कह रहे हैं कि इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है। दुनिया सो काम नहीं हमना, यहाँ आराम नहीं हमना, हमारा फाम नहीं हमना, किसी सो हुज्जता क्या का। खुद हम अपने आप को ही नहीं जानते
तो किसी से क्यों कर बहस करें। एक बात आप महसूस कर रहे होंगे इस गज़ल में कि गव्वासी ने हर शेर में 4-4 काफ़ियों का एहतमाम किया है और थोड़े थोड़े फासले से काफ़ियों को लाकर उसने गज़ल में नगमगियत और मौसीकी पैदा करने की कोशिश की है। इसीलिए इस गज़ल में बहुत नगमगी और मौसीकियत पैदा हो गई है और गाने से इसका हुस्न दुबाला हो जाता है। जैसे कि नहीं हमना दुनिया सो काम नहीं हमना, काम काफिया है, नहीं हमना रदीफ है, काम नहीं हमना, आराम नहीं हमना, फाम नहीं हमना। तो ये 3 काफिए हैं और एक काफिया हुज्जता है गज़ल का। हम काफिया किस्वता और दौलता के बराबर है। इस तरह 4-4 काफिए हर शेर में शायर ने लाए हैं। सबूरी खुश किए हैं सच, जीते जो मुए है सच, बढ़ाया सब दिए हैं सच, भी हमने हुर्मता क्या काम। हमने सब्र का एहतमाम किया, सब्र और इस्तिकामत को अपनाया। ये बिल्कुल सही है। सबूरी खुश किए हैं हम, जीते जो हुए हैं हम, यानी जीते जी हम मर गए हैं, मुए यानी मरे हुए, जीते जी हमने मौत को गले लगा लिया है। हमारा जीना मरना बराबर है। बढ़ाया सट दिए हैं सच, भी हमला हुर्मता क्या काम। हमने बड़ाई बुजुर्गी को सट दिया है, छोड़ दिया है, नज़रअंदाज कर दिया है। हमको इज़्ज़त और हुर्मत की क्या ज़रूरत है। हमन दायम जलनहारे, पिया बिन तल मलनहारे, दुखियारियों सो मिलनहारे, हमन को इशरता क्या काम। हम मुस्तकिल तौर पर जलने वाले हैं, पिया बिन तल मलाते हैं, महबूब के बगैर बेचैन रहते हैं, बेकरार रहते हैं। और हम दुखियारे लोगों से, दुखियों से, जो दुख दर्द में मुब्तला हैं, उनसे हम मिलने वाले हैं। दुखियारियाँ सो मिलनहारे, हमन को इशरता क्या काम। हमने ऐश व इशरत की ज़िंदगी को खैर बात कह दिया है और दुखियारियों के दुख दर्द बर्दाश्त करने वालों को, दुख सहने वालों से हम मिलते रहते हैं, उसकी मिजाज पुरसी करते हैं। इसलिए हमको ऐश व इशरत किस काम की। गवासी तो खबर प्यारे, गवासी तो खबर पारे, तमाशा देख दुनिया क्या रे, अंदेश अपना अंदेशा रे, किसी सो मिन्नता क्या काम। ऐ गवासी तू आगाह हो जा, तो जान ले, गवासी तो खबर पारे, तमाशा देख दुनिया का रे, दुनिया का तमाशा देख, दुनिया में क्या क्या हो रहा है। अंदेश अपना अंदेशा रे, हाली ने कहा था तुझको पराई क्या पड़ी अपनी निबेर तू। अपनी फिक्र कर, ऐ गवासी तो अपना अंदेशा कर, अपनी फिक्र कर। अंदेश अपना अंदेशा रे, किसी सो मिन्नता क्या था। गवासी तो खबर पारे, तमाशा देख दुनिया का रे, अंदेश अपना अंदेशा रे, किसी सो मिन्नता क्या काम। दूसरों की फिक्र गैर ज़रूरी है, तो अपनी फिक्र कर, अपने आप को देख, तुझ में कितनी खामियां हैं। दूसरों की फिक्र करना, दूसरों की अंगुश्त नुमाई करना मुनासिब नहीं है। अपने आप को जांचना, अपनी फिक्र करना, यही मुनासिब है। ये शायर कहता है। मैं समझता हूँ कि ये गज़ल काफ़ी है। इस पर मज़ीद अगर कोई गुफ्तगू होनी हो तो
सर जवाब देने के लिए तैयार है। सर शुक्रिया अदा करना है जी। हम यहाँ से करें या आप करें? नहीं आप पर वाजिब है, शुक्रिया। नहीं मैं ही करती हूँ आप दोनों का। जी 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 आप। मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद अली असर साहब जिनकी तहरीरें हम पढ़ते आए थे, आज हमें नसीमुद्दीन फरीद साहब जो इस कोर्स के कोऑर्डिनेटर हैं उनके तवज्जुह से सर ही की मोहब्बत में वो तैयार हुए हैं, मुझे अंदाज़ा है। तो हमें सुनने और देखने का मौका मिला, इसके लिए मैं सबसे पहले प्रोफेसर मोहम्मद अली असर साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि अपनी सेहत की नासाजी के बावजूद आप तैयार हुए और इतना मालूमाती और तस्वीर अफरोज खुतबा हमने दिया, हमारे सवालात के जवाब दिए, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ सर। इसके साथ साथ नसीमुद्दीन फरीद साहब और 2 हमारे स्टूडेंट जो आपको टेक्निकली असिस्ट कर रहे हैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ और साथ ही इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर के अमले का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत मैं बहैसियत कोर्स कोऑर्डिनेटर इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के अरबाब मजाज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके ताउन की वजह से ये एक प्रोग्राम कामयाबी की मंजिलों से हमकनार हो सका। अगर उनका ताउन ना होता तो हम शायद इसको कर नहीं पाते, और उन्हीं के ताउन की वजह से हम इस काबिल हो सके और शोबे उर्दू को ये एजाज़ हासिल हुआ कि रेफ्रेशर कोर्स की तारीख में मानो कि ये शोबा उर्दू ने पहली मरतबा स्काइप पर ये रेफ्रेशर कोर्स के लेक्चर का एहतमाम अमल में लाया। बहुत बहुत शुक्रिया।